recording. Yeah, sorry. Okay. So, assalamu alaikum. Before moving on to the formal lecture and along with the fun-based activities, first of all, I would like to have introduction of those students with whom I'm not familiar. So I can see some of the participants named. I think I haven't taught Sahil. I don't know whether she or he is. Sorry. First, let me. Because name is so unique, mashallah, such a nice name. But I think I don't know you before these sessions. Okay, okay. Thank you so much, Sahil, for letting me know. Mashallah, you have a very nice name. Along with Sahil, I think I'm not familiar with Dr. Abdul Rabb Tahir. And I mean, I want to know more about these participants. Otherwise, I can see more of my students. ये आकाशा अशरफ भी कोई ऐसा नाम है जो I think के I'm not familiar with this name. So any one of you would like to introduce yourselves ताकि आपके बारे में भी मैं मज़ीद बेहतर जान पाऊँ. Akasha Ashraf, would you like to tell me about yourself? Who are you? What are you currently doing? Are you studying or are you a professional? And what are your future aspirations? Just इसको हम थोड़ा सा ही time देंगे, because obviously we have to move on to the topic as well. Walaikum assalam. It would be nice if you could turn on your camera, but it's if not, then it's okay. But it would be better, I think. Face-to-face interaction मज़ीद अच्छा हो जाएगा. It would be better if you're comfortable with that, and if you're not, okay, just introduce yourself. Okay, thank you, Kasha, for turning on your camera for me. I think the rest of the participants would also get to know about you via face as well. Ji beta, start again. Ma'am, currently I'm studying clinical psychology 3rd semester, and now मैंने apply किया था ambassador के लिए, so now I'm junior ambassadors like Sultan and Meera, और अभी फिलहाल ये कुछ हो रहा है और 1-2 academies में जो है वो मैं teaching कर रही हूँ फिलहाल. Very nice. And very nice. और so what is your future? CSS inshallah. Okay, okay, CSS. Okay. Yes. Very nice, very nice, very good. So basically, she is the ambassador of the Last Hope Center, and she is currently studying psychology. And secondly, thirdly, rather, she aspires to become a civil service officer. Yes, civil services join karni hai? Yes, ma'am, inshallah. Okay, and what about the field of psychology? I'm sorry, I can't hear you. What about the field of psychology? We are going to lose a good psychologist if you go into civil services. Okay, best of luck. जी बोले. मैम मेरा जो भी स्कोप था CSS की, मैं फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा इसमें है, लेकिन मेरा अगर वहाँ पे ना हुआ बाय चांस अनफॉर्चुनेटली, तो मैं कमीशन में अगर अप्लाई करूँगी तो एज एन साइकोलॉजिस्ट ही अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह. Okay, very good, very good. And you are also teaching in academy as well. That's really very nice. That's really very nice. Okay. So thank you so much. Akasha, you also have a very unique name. Anyone else who would like to introduce himself or herself? Sahil, आप बताइएगा अपने बारे में. I think कि मेरे किसी student का नाम ये नहीं है, तो आप मेरी student नहीं है यकीनन. Sahil, are you comfortable in introducing yourself? जी वालेकुम अस्सलाम. Yes, ma'am. I'm Sahil and I'm camera on कर दें, so it would be better. Sorry for interrupting you, but it would be nice. Rest of the participants are also going to get to know you much more. Sorry, ma'am. Willing? Okay, it's fine. Go ahead. I'm studying from BS Economics in University of Southport. 5th semester है अभी मैं. अच्छा, आपका 5th semester है. और आगे क्या करना है? Economics की फील्ड में जो है further pursue करना है इसी फील्ड को? Yes, ma'am. Yes. Okay, very nice. Anything else about you? Which one is your favorite subject in economics?
कोई एक सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो? Stat. Stats. Okay. One of the toughest subjects, I think, for my students. और psychology के students के लिए मुझे लगता है. Okay, Dr. Abdullah Tahir, would you please like to turn on your camera for me so that we may be able to interact with you in a better. Kindly unmute your mic. Assalamu alaikum. Sorry, I can't turn on my camera fine. right now. That's fine. My name is Dr. Abdullah Tahir. I have recently done my MBBS and now I am a house officer in Jinnah Hospital, Lahore in cardiology department. Oh, very nice. So I have some issues with my anger management. So that's why I am trying to manage my anger through different channels, using different channels. So मैंने देखा था कि ये लास्ट आप अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, तो मैंने कहा आपके लेक्चर भी सुन लेने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया सेशन. ठीक है, होपफुली आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे. इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आपके सेशन के लिए टाइम निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ अपनी भी और मेरे साथ जुड़े लोगों की भी. Okay, thank you for being a part of this this session and this camp as well, and hopefully these learnings are going to be quite effective and helpful for you in your future. अच्छा जी, अब क्विकली कोई एक मेरा स्टूडेंट जो बाकियों को अपने बारे में कुछ बताना चाहे, उन लोगों को जो ऑब्वियसली आपको नहीं जानते बिकॉज दे आर नॉट आइदर फ्रॉम योर प्रोफेशन और फ्रॉम योर डिपार्टमेंट और फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. कोई मेरा एक स्टूडेंट जो कि कैमरा ऑन करके बात करना चाहे, आई वुड love to give chance to one of my own students as well. Anyone? कैमरा भी ऑन कीजिएगा प्लीज, ज्यादा बेहतर एक्शन हो जाता है. Anyone? No one is confident enough. जल्दी करें. मेरा कोई स्टूडेंट? जी हिरा रिजवान, with your camera also. जी हिरा, unmute yourself. जी हिरा, nice to see you after so long. जी वालेकुम अस्सलाम. जी. Well, my name is Hira Rizwan and recently I have graduated from University of Sialkot and Alhamdulillah I have completed my BS Clinical Psychology. थोड़ी देर तक, थोड़ी देर. Further, I also want to study and I also want to become a successful clinical psychologist. And my further study plans are also important for me to take a big step for the further career. ठीक है, आपका हो गया. मुझे आपके बारे में वैसे ही पता है, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था. एक मिनट, हीरा दोबारा आए कैमरा पे. हीरा दोबारा आए. मैं बीच में जो है किसी और से बात करने लगी थी, आप खामोश हो गई थी, क्यों हो गई? माइक अनम्यूट कीजिए बेटा, माइक अनम्यूट करें. मैम मुझे फील हुआ था कि आप किसी से बात कर रहे हैं इसलिए. ठीक है. सेकेंडली मैंने कहा ठीक है, हो गया, बस मुझे आपके बारे में पता है. तब कैसा लगा? नहीं मैम, मुझे अच्छा लगा था. अच्छा लगा था जी, ये मेरे लिए प्राउड है. अच्छा चलें, सही है, चलें. बट बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक्टिव लिसनिंग नहीं किया आपकी दफा. जी. नोट किया आपने? बाकियों ने किसी ने गौर किया? ये क्या हुआ था? nobody is here right now. Yes, I was just, it was an activity. ठीक है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग नहीं थी, आपने फोकस नहीं किया उसके उनकी बातों पे जिस बारे में उन्हें गुस्सा आना चाहिए था. लाइक उसकी वजह से सेल्फ एस्टीम भी लो होता है कि जब एकदम से ये कहा जाए कि आप चुप करते हैं, आपसे ये नहीं था पूछा या इस तरह से, तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो होता है. एक नेचुरल वो है. तो thank you Hira, it was only an activity. ठीक है? Yes ma'am. You are one of my good students. ठीक है जी. सायरा, sorry Saira, want to say something? Yeah, I was going to say same thing that Sultan have told you कि ऐसे बिल्कुल self esteem low होती है और confidence भी low होता है. सही है. So again, अब आप देखें, हीरा तो स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, तो उन्होंने रिस्पेक्ट में ये बात कह दिया. अदरवाइज जस्ट फील फॉर अ सेकेंड, हाउ डज इट फील, हाउ डज इट make the other person feel when you are not listening actively. और बजाय इसके कि मैं एक डेफिनेशन में जाती,
कि जी एक्टिव लिसनिंग ये होती है, पैसिव लिसनिंग ये होती है। बेहतर है कि मैंने आपको डेमो दे के दिखाया कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव लिसनिंग। अब कोई खुद से डिफाइन करेगा, जो एक एक्टिविटी के बाद भी हो सकता है आपको आइडिया हो गया हो कि एक्टिव लिसनिंग कहते किसे हैं, तो बताएगा मुझे। लिसनिंग, अच्छा चलें एक और बात है, लिसनिंग काम है आपके कौन से ऑर्गन का? इट इज डिपेंडेंट अपॉन और इज इट रिलेटेड टू योर ईयर्स? ऑब्वियसली आप कानों से सुनते हैं ना, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू वांट टू आंसर एनीथिंग, जस्ट प्रेस ऑन द raise hand icon and I'll take your answers if I ask you any question, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना है कि आवाजें जो है ना हमें इर्द गिर्द से आ ही रही होती हैं, क्योंकि कानों का काम यही है। कानों का काम क्या है कि उन्होंने आवाजें कलेक्ट करनी है, साउंड्स को कलेक्ट करना है, एंड दे हैव टू सेंड मैसेज ऑफ साउंड टू द ब्रेन, ठीक है। अब ये ब्रेन में जा रहा है मैसेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग, लिसनिंग क्या होती है कि जब आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को ध्यान से उस आवाज को सुन रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग ये है कि उस आवाज का जो मीनिंग है वो एज इट इज आपके माइंड तक पहुंच रहा है। जो आपसे बात की जा रही है, द मैसेज इज बीइंग कन्वेड टू योर माइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग दैट इट इंटेंड्स टू बेसिकली कन्वे टू यू। जो मैसेज है वो एक्चुअली आपके माइंड तक वैसे ही पहुंचे जैसा कि वो इट इज सपोज टू बी सेंड टू योर माइंड। यानी कि इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपको कोई आवाज है एंड यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट वेदर इट्स द वॉइस और अ साउंड ऑफ अ मशीन और एन इंसेक्ट, तो अब आप क्या करेंगे? आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये ना किसी मशीन की आवाज है, दूसरा कहेगा नहीं ये शायद पंखे से आवाज आ रही है, तीसरा कहेगा नहीं शायद ये फ्रिज की आवाज है जो खराब हो गया था, जिसका कोई पार्ट, या फिर आप कहोगे कि नहीं शायद ये कंडीशनर से आ रही है। आप नोट कर रहे हो कि किस तरीके से आप ध्यान देते हैं, आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं। अदरवाइज आवाजें आपके इर्द गिर्द हैं और वो आपके कान कलेक्ट कर रहे हैं, उनका काम ही यही है आपके कानों का। इस वक्त अगर किसी का कमरे में पंखा चल रहा है तो हो सकता है उसकी आवाज आ रही हो, बट यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू माई लेक्चर, ठीक है। आई होप सो, ठीक है, ओके जी। अब हम ऐसा करेंगे कि मायरा प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। अब जो मैंने करनी है एक्टिविटी, देखिए बच्चे इसमें ऐसा है कि एक मकसद ये है इन कैंप्स का, टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन यू। अगर लीडरशिप की इसको वैसे मैंने सम अप कर दिया इस स्लाइड को, ठीक है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि हियरिंग इज बेसिकली, अच्छा इससे पहले हम एक एक्टिविटी पे आएंगे। लेकिन देखिए आपने लीडरशिप के लिए है, आपने लिया है सेशन, आप लोगों ने लिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। इनका एक पर्पस ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और वो नहीं होगा तो मैं समझूंगी कि इस हद तक हमारे वो फुलफिल नहीं हुए। अब जो मैं एक्टिविटी करने लगी हूँ कोई किसी को नहीं देखेगा, आप इस बात को जो है ना इस बात को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं आप सबकी तरफ देख रही हूँ कि आप हो सकता है सिर्फ कैमरा में अपने आप को देख रहे हो, क्योंकि एक्टिविटी बहुत तेजी में होनी है लेकिन बहुत फन बेस्ड है। प्लीज आप जिस भी हुलिये में बैठे हैं काइंडली कम अप ऑन कैमरा, काइंडली, ठीक है। लड़कियां हैं तो प्लीज दुपट्टा वगैरह ले लें, लड़के हैं तो काइंडली आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी इशू। तो जितने भी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और इवन इफ यू डोंट अनम्यूट योरसेल्फ जस्ट कीप योरसेल्फ म्यूटेड, बट कैमरा जरूर ऑन करें, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन देखना चाह रही हूँ। कल ही मैंने ये वैसे इंस्ट्रक्शन दे दी थी, बट यू आर ऑल आर गोइंग टू एंजॉय, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्किप दिस एक्टिविटी। ये बहुत फन एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी ऐसी है कि किसी को देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इफ यू ऑल आर विलिंग विद इन अ सेकेंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द लेक्चर। और लेक्चर में मुझे इतना मजा नहीं आएगा जितना आपके साथ एक्टिविटी करा के आएगी। लड़कियों को अगर कोई इशू है प्लीज दुपट्टा वगैरह लें और आ जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए प्लीज। यहाँ से पता चलता है कि आपकी कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जी जी, हियर इज हियर मीरा, आप क्या मैम? जी जी आवाज आ रही है आपको? मैं कह रही थी कि इसको फिर से रिपीट कर दे प्लीज। अभी तक मैंने जस्ट इतना कहा है कि आप अपने माइक्स को बेशक म्यूट रखें लेकिन कैमरे पे आ जाएं, ठीक है। ओके, आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएं, बिकॉज यू हैव टू लिसन टू मी इन दिस एक्टिविटी एज वेल, जस्ट मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. All right. I am basically going to keep my eyes on each one of you, as obviously on as many participants as would be possible for me. But just follow my instructions. ठीक है, मैं जैसा कहूँ आपने वैसा करना है. कर लेंगे जी? जैसा मैं कह रही हूँ आपने वैसा ही करना है. ठीक है जी? Okay. Let's see कि आप लोग कितनी तेजी में जो है मेरी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं. यानी कि जैसा आपने सुना फौरन से आपने वैसा ही एक्ट किया, लेकिन कितनी जल्दी किया. ठीक है, एक्टिवली लिसन करके आप कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं. आर यू रेडी फॉर द एक्टिविटी? आई होप यू ऑल आर. ओके. Yes, ma'am. ऑलराइट, जस्ट फॉलो मी. ठीक है, जैसा मैं कहूँ आपने सही. ओके. ब्रिंग योर राइट हैंड आउट. ब्रिंग योर राइट हैंड आउट. प्लीज फॉलो मी. ऐसे ही करें जैसा मैं कह रही हूँ. ब्रिंग योर राइट हैंड आउट. I cannot see some students doing that. बच्चे कुछ भी नहीं होगा, कर लें. Okay, bring your right hand out. Bring your left hand out. Bring your right hand up. Bring your left hand up. Bring your right hand on your head. Bring your right hand on your head. Bring your left hand on your head. Bring your right hand on your chin. Bring your right hand on your chin. Bring your right hand on your chin. खुद देखें अपने आप को आप क्या कर रहे हो और आपने कितना टाइम लिया ये समझने में. अभी भी बच्चों के यहाँ है हाथ. अभी भी हाँ जी, अब सबके गए हैं हाथ वापस. आवाज नहीं आ रही थी मेरी. लैग कर रही है. किसको नहीं आ रही थी? आई डोंट नो बच्चे, मैंने अपने यहाँ पे फुल सिग्नल्स मुझे शो हो रहे हैं. अच्छा जी, व्हाट वाज माय इंस्ट्रक्शन? जैसा मैं कहूँ आपने वैसा कर. आवाज ठीक. अच्छा ठीक आवाज थी. ओके. अच्छा जी, क्या इशू है? कोई बताएगा यहाँ पर एक्शन में क्या प्रॉब्लम आई है आप लोगों के? क्या कर रहे थे आप लोग? मैम उस वक्त आपने चीक्स पर हाथ रखा था और आपने बोला चिन था, तो वो हमने देखा चीक्स पर था हाथ, तो वही हाँ, तो इस वजह से हमने फॉलो किया था वो. जी. यानी कि देख. और मेरी इंस्ट्रक्शन क्या थी? जैसा मैं कहूँ आपने वैसा करना है. मैंने ये नहीं कहा जैसा मैं करूँ आपने वैसा करना है. सही बात. ऐसा ही हुआ. ठीक है. Yes. चलिए, इट वाज जस्ट एन एक्टिविटी. लेकिन आप देखिए लाइफ में हमारे हो क्या रहा है. बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक्टिव लिसनिंग, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. हम लोग जो होता हुआ देख रहे हैं हम उसको ज्यादा फॉलो करते हैं. ये वैसे लाइफ की मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी. यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरास नाउ. ओके. बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं थ्रू सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, हम उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन नोटिसिंग हु इज सेइंग दैट एंड व्हाट इज बीइंग सेड. ठीक है. सो बेसिकली वी डू नॉट लिसन एक्टिवली. बाज दफा अम्मी को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस ऐसे दे रही होती हैं कि आप एक्टिवली लिसन कर भी रहे होते हैं ना, तो उनके एक्शन को फॉलो कर लेते हैं, इसलिए आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपकी अम्मी कह रही है वो उधर जाओ, वहां पर मैंने जो है ना दुपट्टा रखा था वो निकाल के लिया. अब वो जहाँ इशारा कर रही है, इशारे में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी. अब यहाँ पर मैं जो रोल बता रही हूँ ना वो एक्टिव लिसनर का भी बता रही हूँ. वो लिसन तो कर रहा है लेकिन वो फॉलो किस चीज को कर रहा है? जिसको वो देख रहा है. यहाँ पर स्पीकर का काम ये है कि वो बहुत क्लियर अपनी इंस्ट्रक्शंस दे. ठीक है, बहुत क्लियर उसकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. और सेकेंडली जो लिसनर है उसका काम क्या होना चाहिए कि वो क्लियर अपने आप को करने के लिए क्वेश्चन पूछे. ठीक है, आप लिसन तब करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू नो व्हाट इज बीइंग सेड टू मी. ठीक है, बाज़ दफा हम लोग नहीं क्वेश्चन करते, जिसकी वजह से हमें मिसकम्युनिकेशन हो जाती है. गैप्स इसी वजह से क्रिएट होते हैं इन रिलेशनशिप्स. Listening is one of the most important skills you have. But why? Anyone would like to answer this question? Then I'm going to move forward to the next one. अच्छा, इस तरह की एक और एक्टिविटी आएगी और बहुत मजे की आएगी. Kindly keep, okay, we have only 10 minutes left. जी, इसका आंसर कीजिए कोई एक स्टूडेंट, कोई एक पार्टिसिपेंट. Please raise your hand if you want to answer. कहाँ? अच्छा चले आप मुझे इसको मैं आसान करती हूँ. एक्टिव लिसनिंग जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है? आई होप नाउ यू नो व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग. जी आयशा इज अ वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट बाय द वे. आई मस्ट अप्रिशिएट. जी मैम. जी आयशा. मैम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तो जैसे आप
एक्टिविटी की थी उसमें आपने उनको सुना नहीं स्टूडेंट को, तो इफ शी इज नॉट फीलिंग हर्ड शी वॉन्ट स्पीक, शी वॉन्ट डिलीवर हर मैसेज क्लियरली, सो दैट्स effective communication. It's very necessary कि active listening हो. Very nice, very good. जी मीरा. मैम एक्टिव लिसनिंग अगर देखा जाए तो जब हम ड्यूरिंग लेक्चर सुनते हैं, अगर तो किसी भी चीज़ से हमारी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो तब हमें जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए जो है हमें एक्टिव लिसनिंग जो है ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन अगर हो रही है तो उस गैप को जो है वो कवर कर सकें थ्रू एक्टिव लिसनिंग. जी फातिमा. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम एक्टिव लिसनिंग जो है वो एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको वो अपने सारे जो सिचुएशन वगैरह मसले वगैरह बताता है, तो जब तक आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करोगे, मतलब आप एक इफेक्टिव होकर उसकी बात नहीं सुनोगे पूरी तवज्जो के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ट्रीट कर सकते हो उसको. वेरी नाइस पॉइंट रेज बाय फातिमा कि अगर आप देखिए साइकोलॉजिस्ट के लिए तो ही है इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड एक्टिव लिसनर विद योर क्लाइंट्स. लेकिन आप देखें कि रोजमर्रा लाइफ में ये कितना इम्पोर्टेंट है. अच्छा, ये हो क्यों नहीं पाता? डू यू थिंक वी ऑल आर एक्टिव लिसनर्स एंड व्हाई आरंट वी? इसके कोई रीजन बताएंगे आप? अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा एक्टिव लिसनर्स नहीं है, आप बात करें और वो अपनी बात शुरू कर देता है, या वो आपको इंटरप्ट करके आपके मौजू से हट के बात करना स्टार्ट कर देता है, या जो आप बात कर रहे थे वो बात सुन ही नहीं रहा था, या उस बात का कोई और मतलब लेके आपके साथ कोई और बात या कोई और बहस छेड़ देता है. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन फिनोमेना दैट इज अकरिंग. जी, होता क्यों है? व्हाई आरंट वी एक्टिव लिसनर्स, और व्हाई डोंट वी सी active listeners around us? जी सुल्तान, you have to say something. Yes ma'am, I guess इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस वगैरह ले रहे हैं चीजों के बारे में, ओवर से ज्यादा सोचा जाता है और दिमाग पे हावी किया जाता है चीजों को, जिसकी वजह से अगर फोकस नहीं हो पाएगा तो हम लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं कर सकते, और उसकी वजह से हमारी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, और उसकी वजह से लोग भी बातें यही सुनाते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे पा रहे या सुन नहीं पा रहे सही तरह से, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस होती है. वेरी गुड. मोस्टली पीपल वांट टू बी हर्ड एंड नॉट टू हियर. वेरी गुड, वेरी एप्ट पॉइंट. स्पैन ऑफ अटेंशन में भी ओके. जी शीजा. अस्सलाम वालेकुम. जी बताइए. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैम, मैं इस पे ये कहूँगी कि मैं खुद की भी बात करूँगी कि बाज़ औक़ात हम एक्टिव नहीं सुन पाते ना, तो वो इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना कि हमारा अगले की बात में कोई इंटरेस्ट है या नहीं. यानी अगर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे उस बंदे को, तो हम उसकी बात भी एक्टिव होकर नहीं सुनेंगे. ठीक है जी, इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी नाइस. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल टीचर का लेक्चर है, टीचर इतना बोरिंग लेक्चर देते हैं कि हम सुनते नहीं हैं. ठीक है, एग्जांपल जस्ट दे. यस मैम. साहिरा जी. अच्छा, जूम क्लासेस में ये बहुत हुआ है, आपने नोट किए? और टीचर्स को पता चल जाता है कि कौन जो है वो हमें एक्टिवली लिसन कर रहा है. टाइम मैम ज्यादा होता था. हाँ जी, वहाँ पे ना इंटरेस्ट की बात है और ना ही ये है कि आपको स्ट्रेस है. थोड़ा बहुत स्ट्रेस कह सकते हैं, अदरवाइज असल ये है कि इंटरेस्ट कहीं और है सोने में. चलिए जी साहिरा. जी साहिरा. मोस्टली ये होता है कि ज्यादातर लोगों के साथ कॉमन इश्यूज ही चल रहे होते हैं. ठीक है, तो वो अगर एक बात रिपीटेडली भी की जाए तो इंटरेस्ट लैक होता जाता है. अगर आप ग्रुप में ही बैठ के कोई बात कर रहे हो तो वो इतनी इंटरेस्ट है, फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी. लोग अपने काम में या फिर वो अपनी बात अंदर ले आएंगे कि मेरे साथ भी ये सीन था, उस बंदे की बात वहीं पे रह गई. तो इसलिए आई गेस कि ज्यादा जो है ना सबके साथ मेजर इशू वही कॉमन इश्यूज चल रहे होते हैं, जो कि कहते हैं नहीं पहले हमारी सुन लो. आउटकम किसी के पास नहीं होता, लेकिन ये है कि वो सुनाना चाहते हैं अपनी कि मेरे साथ भी ये हुआ ये सीन. ठीक है, बिकॉज पीपल गेट बोर्ड ऑफ लिसनिंग टू द सेम स्टोरीज अगेन एंड अगेन. अच्छा जी, ज़ैनब ये कह रही है कि आवाज ना आए देन भी अच्छी लिसनिंग नहीं होती. एग्जैक्टली वो एक अगर फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ इंटरनेट का कोई इशू क्रिएट हो जाए, जिस तरह ज़ैनब ने कहा है, ठीक है, वो इट इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो अभी हम आगे जाके जिसको डिस्कस करेंगे. जी वेरी नाइस पॉइंट. जी मीरा, यू आल्सो वांट टू से समथिंग? वर्डिंग आल्सो मैटर अ लॉट व्हाइल कन्वर्सेशन. वेरी नाइस पॉइंट हिरा रिजवान. जी मीरा. मैम
अगर हम घर की बात करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है हम काम कर रहे होते हैं और अम्मी आवाजें दे रही होती है और बाद में हमें डांट पड़ती है कि तुमने मेरी बात मानी, फिर ये बात आ जाती है कि आपने कहा ही कब था। तो तब ये जो एक्टिव लिसनिंग वाला काम है ना, ये बहुत ज्यादा खराब होता है। अच्छा तैयार रखिएगा, ये अम्मी और भाई और हस्बैंड्स और वाइफ्स की एग्जांपल्स बहुत आएंगी, ठीक है, ये मैं खुद दूंगी आप लोगों को। अम्मी अगर आपको पढ़ाई का काम करते हुए देखे ना, वो शायद आपको आवाज ना दें, वो अपने काम के लिए आवाज तब देती हैं जब आप मोबाइल में होते हैं। आपको नहीं कह रही, ओवरऑल एक जो है ना एवरीडे फिनोमेना बता रही, ठीक है, या फिर आप ठीक है, ओके जी। सुनना छोड़ दिया है सबने, बस सुनाना चाहते हैं। ओके जी, आमना ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। व्हाइल डूइंग एनी कम्युनिकेशन इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल्स। वेरी नाइस पॉइंट रिमशा फारूक, दैट इज द रीजन हमारे यहाँ डिस्ट्रैक्शंस जो हैं क्रिएट हो गई हैं, जो कि एक्चुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। You'll get to know the answer as well to this question. जी मायरा, मायरा प्लीज मूव ऑन टू द ओके। एक जो प्रॉब्लम है ना, we do not listen to understand, we listen to reply. Even when we are listening to the stories of others ना, हम चाह रहे होते हैं कि उसको रिलेट करें अपने वाक्य से और फौरन से रिप्लाई दें इसको, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बाज दफा एक इंसान जब बात कर रहा होता है ना, उसका मकसद मशवरा लेना भी नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ सुनाना फॉर द सेक ऑफ सुनाना होता है कि मुझे समझो मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और सेकेंडली जो आप लोगों ने पॉइंट्स बताए हैं ना, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग दीज डिस्ट्रैक्शंस, और ये जो बात आई है कि अम्मी जो है वो हमें आवाजें देती नहीं और आप कहते हैं आपने कब बुलाया, ये कॉमन वर्डिंग है ना कि आपने कब दी आवाज, और अम्मी कहेंगी मैं 5वीं दफा बुला रही हूँ। ये ऐसा क्या होता है कि जब अम्मी की आवाज जो है वो पिछली 4 दफा जो है वो आपके कानों में नहीं पड़ी और 5वीं दफा आपको सुनाई दे गई है? कब सुनाई देती है? 5वीं दफा क्यों सुनाई देती है? अगर मैं पूछूं आपसे, इसका आंसर है हेयरिंग और लिसनिंग में आपको आवाजें आ रही हैं, आपके आपके कान जो है ना, आपके ईयर्स, वो काम करना नहीं छोड़ते हैं, आवाजें आ रही होती हैं। अम्मी की आवाज ये आती है एंड पे, सुनाई नहीं देता, या ऊंची आवाज में बहुत बोलेंगे कि अब भी सुनना है या मैं आऊं। अब ये जो आवाज जिस टोन में है ना, अब आपको पता है इसके बाद एक्शन आएगा, ठीक है। उस वक्त आप उठ जाते हैं और आपको लगता है अम्मी ने पिछली मुझे आवाज दी, एक्चुअली हाँ जी बिल्कुल, फिर पनिशमेंट का डर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यू लिसन टू दोज थिंग्स विच हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू, ठीक है। से हाँ जी, सख्ती से जो बोलती है, बिल्कुल सख्ती से वो बोलती इसीलिए बिकॉज शी नोज दैट यू आर गोइंग टू रिमेन पैसिव लिसनर व्हेन शी इज कॉन्टिन्यूसली यूजिंग अ सर्टेन टोन। तो उन्हें अपनी टोन या फिर अपना जो है वो एक तरह से लहजा कह लें, उसको चेंज करना पड़ता है। अच्छा जी, we because I spend much time on introduction as well, which is good for me. I got to know the other people as well who are basically not in that much interaction with me. Okay, otherwise flying chappal from mummy will be received. चलें जी, ठीक है, चलें जी, ओके। ये आपकी अम्मियों को भी मेरे साथ जो है ना लेना चाहिए ये वाला सेशन। मैं उन्हें बताऊंगी कि आप जो है ना पहली आवाज ही ऐसी दिया करें कि ये फ्लाइंग चप्पल वाले बच्चे जो है ना खुद ही फ्लाई करके आप तक पहुंच जाए पहले, ठीक है। अच्छा जी, आगे बहुत मजे की एक्टिविटी है, वीडियो भी है मजे की, तो इंशाल्लाह यू इन नेक्स्ट सेशन एंड आई एम गोइंग टू कवर इट अप विद इन द टाइम लिमिट दैट हैज बीन गिवन टू मी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट था। मायरा प्लीज सेंड द अदर लिंक दैट वी आर गोइंग टू ज्वाइन। बेटा अदर लिंक, ठीक है, नेक्स्ट लिंक आप सेंड कर दें बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली अ फ्यू सेकेंड्स आई गेस। मेरा एंड कर दें इसको, ठीक है। बेटा ये मीटिंग वैसे ही एंड होने वाली है आई बिलीव, सो आई एम आस्किंग यू टू, ठीक है। मायरा इससे पिछली स्लाइड पे बेटा, ओके। बेसिकली इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर एकेडमिक लाइफ, ठीक है। हाउ एंड व्हाई इसको मैं खुद कवर कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीचर का आधा लेक्चर लिया और आधा या तो आपके सर से गुजर गया या आप ऑब्वियसली उस वक्त जो है एक्टिव लिसनर के तौर पे नहीं बैठे हुए थे क्लास में, एंड इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग जूम क्लासेस, ठीक है। तो क्या होगा,
इसी वजह से आपके रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा जॉब इफेक्टिवनेस, बॉस ने एक बात कही, आपको कुछ और समझ आई, किया आपने कुछ और उसके बाद जो है आपने जब उनको कन्वे किया तो वो कुछ और कन्वे हुआ। इससे क्या हुआ कि आपकी जॉब इफेक्ट हुई ओनली बिकॉज यू वर नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग द मीटिंग। रिलेशनशिप्स कहाँ खराब होते हैं? कभी सुना है आपने ये वाली टर्मिनोलॉजी कि अजी सुनते हैं या आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, और आगे से जवाब क्या आता है, इतने सालों से मैं आप ही की तो सुन रहा हूँ। कभी सुने आपने ये वर्डिंग? ठीक है, कि खातून खाना का ये गिला होता है कि ये मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी एक भी नहीं सुनते, और वो कहते हैं मैं बस इन्हीं की सुनता हूँ। ये कहाँ आपको लगता है कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, और क्यों आ रहा है? सुनते हैं लेकिन हेयरिंग वाला सुनते हैं, लिसनर है लेकिन एक्टिव लिसनर नहीं, ठीक है। जो बात कही जा रही है वो प्रॉपरली नहीं लिसन कर रहे। इसका मैं आपको एक डेमो दूंगी थ्रू नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू यू नो पर्सनल डेमो और समथिंग लाइक दैट, बट वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सप्रेशंस बहुत जो है ना गौर से नोट कीजिएगा ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स, ठीक है। ये एक शॉर्ट वीडियो है और बेसिकली ये एक्टिव लिसनिंग ही को, बेटा वीडियो चल सकती है? अच्छा, इस पे मैं क्वेश्चंस करूंगी आप लोगों से, हो सकता है आपको कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, कॉन्टेक्स्ट मैं इस वीडियो का बता देती हूँ। कॉन्टेक्स्ट वीडियो का ये, बेटा चल रही है ये मायरा? ओके। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अ पर्सन इज बेसिकली गिविंग अ जॉब ऑफर, ठीक है, टू समवन, बेसिकली शी इज अ फ्रेश ग्रेजुएट, बल्कि रादर शी इज अ स्टूडेंट राइट नाउ इन आर्ट्स कॉलेज, और यहाँ पर ये उन्हें दे रहे हैं जॉब ऑफर और अपनी डिमांड्स बता रहे हैं, ठीक है। बट जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। वन इज continuously speaking and is getting the impression that the listener is not actively listening to me, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लें जी। बेटा वीडियो विद वॉइस आए तो ज्यादा अच्छी बात है जी। Myra, just I can't see the video. Is it playing? Is it being played? I can't see it. नहीं मैम अभी नहीं हो रही। मैम एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है, मैं चेक कर लूँ, मैं फिर आप बस ऑन सिनेरियो क्या था? सिनेरियो बेसिकली यही था कि she was listening, she was getting the message, but she seemingly or apparently she was not being active listener, ठीक है। और उसी का इतना बुरा इंप्रेशन आता है on that person कि as the play unfolds तो आपको पता चलता है कि मिसकम्युनिकेशन और जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान, वो इसी वजह से होती है। वो क्या करते हैं कि not even paying attention to whatever I was saying, ठीक है। और आप नोट करें जस्ट एक्सप्रेशंस के थ्रू दे आर कन्वेइंग द ऑडियंस के व्हाट बैड इम्पैक्ट और व्हाट बैड वाइब्स डज द अदर पर्सन गेट when he or she feels that whatever he or she is saying is not being listened to or not being paid attention, ठीक है। ये देखें जरा इसको। आवाज का शायद इशू है, आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए ठीक है, आप जस्ट एक्सप्रेशंस नोट कर लें बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। No, she is just engrossed somewhere else. ठीक है बच्चे, आई होप ओके। जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशंस, ठीक है चलाएं इसको, जस्ट इसको चलाएं, जस्ट सी द एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। ओके फाइन, ठीक है बच्चे। I don't know whether have anyone actually grasped the idea of what I'm saying. She is pretending कि वो सुन रही है but she is not actually listening, मतलब उसको ये pretend करा रही है कि मैं नहीं सुन रही but वो सुन रही है उसको,
और प्रॉपर एक्सप्रेशन भी वो ऐसे दे रही है जैसे वो नहीं सुन रही। हाँ जी, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि देखें, अगर आप एज द स्टोरी अनफोल्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया है, जो दरमियान में इनके मिसअंडरस्टैंडिंग कि शी इज नॉट एन एक्टिव लिसनर, और उसकी वजह से जो है वो उन्हें एक तरह से उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि जब ये मेरी बात गौर से सुन सकती तो फिर मैं इन्हें एज एन एम्प्लॉय क्यों लूँ। ठीक है, ये जो भी बात हो रही थी ना कि ये इफेक्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप्स को, ये चीज इस हद तक करती है, तो इनके एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए थे? इफ आई आस्क यू व्हाट वुड हैव बीन द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस ऑफ द लिसनर इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली? अच्छा, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप जाहिर है इधर उधर नहीं देख सकते कि जी मैं तो आपकी बात बस सुन रहा हूँ और ऐसे शो कर रहा हूँ जैसे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं बस चलते फिरते आ गया यहाँ पे जॉब लेने के लिए। बताएं व्हाट शुड हैव बीन द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। Anyone of you would like to participate? जी, anyone? Can I? जी जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बंदी को वो जो भी काम कर रही थी वो छोड़ के, वो काम वहीं पे छोड़ के, मतलब उसको एक प्रॉपर पोस्चर में खड़ा होना चाहिए था कि वो मतलब जो एक बात करने का तरीका होता है वो खड़ी होती और फिर उनसे बात करती। और दूसरा ये कि उनकी हर चीज को, हर क्वेश्चन को सुनती और फिर सुन के उस हिसाब से उसका आंसर करती हैं। जो भी एक्सप्रेशन या उसने नोट करना था वो मतलब बंदे को पता होता है, उस हिसाब से उसको उनके साथ बात करनी चाहिए थी। ठीक है, राइट, वेरी गुड। जी फातिमा। मैम अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यूज में अक्सर वो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, या फिर अगर वैसे भी आम रूटीन में अगर क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हो तो अगर वो आपको बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बस खामोशी से सुनी जा रहे हो, तो उसको फिर भी एक कह लो कन्फ्यूजन ही रहती है, पता नहीं सुन रहा है या समझ भी आ रही है या नहीं। तो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होता है जी का, जैसे हाँ हाँ बोलो आगे, फिर जैसे आप उस तरह की वर्डिंग होती है कि जो अगले बंदे को शो करवाती है कि सामने वाला बंदा वाकई इंटरेस्ट ले रहा है उसके क्वेश्चन में और उसकी बात में। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए हैं आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, विच इज एन की पॉइंट। ठीक है, कि आई कॉन्टैक्ट होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें, और वैसे भी लाइफ में व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ये हम आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे। जी बच्चे आगे चले जाए बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और स्माइल वाज आल्सो नीडेड एंड जेस्चर्स आल्सो। ठीक है, पैसिव हियरिंग में या पैसिव लिसनिंग में और एक्टिव लिसनिंग में यही अगली स्लाइड पे कर दें। एग्जैक्टली आपके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जो एक पॉइंट रेज किया, दैट इज ऑफ साइलेंस। साइलेंस पे मैं बिल्कुल एंड पे आऊंगी कि साइलेंस जो है वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है इन अ कम्युनिकेशन एंड वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। ओके, नॉन वर्बल एंड वर्बल, वेरी गुड जी, इस पे भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे इसको भी आगे आज। जी मायरा, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक्टिव लिसनिंग बेसिकली रिक्वायर्स पेशेंस। इस स्लाइड में जस्ट इतनी सी बात थी, एंड इट रिक्वायर्स पेशेंस बिकॉज हमारी आदतें बन चुकी हैं कि हम लोग जस्ट अपनी बताना चाहते हैं, अगले बंदे की सुनना नहीं चाहते। ठीक है, ओके, हैंड आई मूवमेंट, ऑल राइट, ठीक है। लिसनर इज आल्सो लिसनिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका जो बेसिक पॉइंट है ना स्लाइड का, वो जस्ट इतना सा है कि यू शुड अपीयर दैट टू बी लिसनिंग। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? आपने कभी नोट किया कि जो बिल्कुल फ्रंट बेंचर्स होते हैं ना क्लास में, वो हेड नोडिंग जरूर कर रहे हो, ऑल्दो टीचर्स को एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि बात कितनी समझ आ रही है या नहीं आ रही, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाई? अब आप जब आंसर्स कर रहे हैं और मैं उसमें बिल्कुल ऐसे खामोश बन के सुनती रहूं, आपके ध्यान में एक ही बात आएगी, या तो इन्हें सारी समझ आ रही है या इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। ऐसा ही है, आप कहेंगे या तो सब समझ आ रही है या बिल्कुल नहीं समझ आ रही। तो जब कोई स्टूडेंट भी ऐसे होता है, ऐसे बैठा हुआ है, whether they are listeners or active listening. Active listening का एक जो मेन इंग्रेडिएंट या आप समझें कंपोनेंट है, that is to give feedback. You should appear to be listening. That yes, I am there and I am listening. कि भाई मैं बाकी यहाँ मौजूद हूँ, आप दीवारों से बात नहीं कर रहे हैं। इसको हम जरा फर्दर आगे लेके चलेंगे। एक्चुअली में more than that, I also need to clear some concepts as well. आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मायरा, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके जी। अच्छा, यहाँ पर भी एक
lagging at I have, speaker समझ रही हूँ. Specifically, you are budding psychologist. तुमको इफेक्ट जाना चाहिए. Empathetic listening is active listening. Basically, empathetic is a type of active listening. Doesn't happen during the activity, otherwise fall हो जाएगा. जी, can you hear me now? Right. जी, आपकी तरफ से इंटरनेट से I'm sorry, आज एक्टिव लिसनिंग आपकी तरफ से, मेरी तरफ से हुआ. आज एक्टिव लिसनिंग आपकी मेरी तरफ से ही नहीं हो पा रही होगी. मतलब कि आप नहीं कर रहे ड्यू टू मी. ठीक है, आई डोंट नो क्या इशू है इंटरनेट के साथ. आई हैव नो आइडिया, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, माय अपॉलॉजीज. जी, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब बस एक्टिविटी के दौरान ये ना हो, वरना तो एक्टिविटी हो नहीं पाएगी. ठीक है. अच्छा, बेसिकली व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? इट इज अ प्रोसेस वेयर यू कॉन्शियसली डिसाइड. कॉन्शियसली आप डिसाइड करते हैं कि आपने अगले शख्स की बात सुननी है या नहीं सुननी. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बहुत ही वियर्ड किस्म की एग्जाम्पल देने लगी हूँ, लेकिन जस्ट बेयर विद मी बिकॉज यू ऑल आर एडल्ट्स. ठीक है. अभी जो अम्मी, भाई, बहन, स्पाउस की जो बात आ रही थी, उसमें क्या होता है कि आपने आधी बात सुनी, आधी बात सुनी नहीं, चाहे आपका इंटरेस्ट था या नहीं. लेकिन आपने उन लोगों को देखा है कभी जो बड़े गौर से एक एक बात सुनते हैं जब उनका नया नया कोई रिलेशन स्टार्ट होता है? आधी आधी रात तक बात करते रहेंगे, 4 घंटे, और एक बात नहीं मिस की होगी. और उनसे पूछा जाए कल क्या बात हुई, एक एक बात याद हो. नोट किया उस वक्त आप क्यों सारी बात सुन रहे होते हैं? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्सन, या बेसिकली व्हाई? बिकॉज एक्टिव लिसनिंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस. आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मैंने ये बात सुननी है या नहीं. आपने कॉन्शियसली ये कहीं डिसीजन लिया था कि इसके बाद अम्मी की फ्लाइंग चप्पल आनी है तो मैंने इस टोन पे बात सुन लेनी है. ये आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने इस टोन पे रिस्पॉन्स देना है, अदरवाइज उनका एक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सही है. सो एक्टिव प्रोसेस है ये. आप ये ना बाज़ दफा हम अपनी गलतियां ना, या फिर अपनी जो अपनी जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं उसको हम इंटरेस्ट डिस्ट्रैक्शंस का नाम देते हैं. ओके, फाइन. व्हेन देयर इज नॉइज अराउंड यू, देन यू कैन से कि ओके, यू नो, डिस्ट्रैक्शन वाज देयर. ठीक है. कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आप कहते हो कि भाई मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर भी दैट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. या फिर समझें कि अगेन ये जो भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, ठीक है, अगेन इट वाज अ डिस्टॉर्शन जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज जो है वो मुकम्मल नहीं पहुंच सकी, और हो सकता है मेरा कोई मैसेज जो है वो आपने मिस कर दिया हो जो मैं देना चाह रही हूँ. आई थिंक वी मस्ट move on. We are left with only half an hour, so we should move on to the activity first, so that कोई enjoyment भी हो, बजाय इसके कि एक फॉर्मल लेक्चर हुए जा रहे हैं. तो आप अच्छा उस एक्टिविटी से ही बहुत कुछ लर्न कर जाएंगे. इसलिए मैं कि ना बच्चे जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा. अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ठीक है, अदरवाइज चले ठीक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे. अभी एक्टिविटी के लिए आई नीड दोज पार्टिसिपेंट्स हु डजंट शाय अवे इन टर्निंग ऑन देयर वेबकैम्स. जी. अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट, मुझे 3 ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए. आई रिक्वायर 3 स्टूडेंट्स जिनका नंबर है ऑलरेडी मेरे पास. आई थिंक असद, आई हैव योर नंबर. यस. ओके. सुल्तान, ठीक है. मीरा, आप भी आ जाइए. ठीक है. अच्छा. यस मैम. ऑलराइट. अच्छा, ऐसा है जी, आप तीनों को बैक वक्त एट द सेम टाइम. आवाज लैग कर रही है बच्चे, फिर तो ये एक्टिविटी हो नहीं पाएगी. मेरी आवाज आई डोंट नो बच्चे, आई एम रियली सॉरी कि क्या इशू है. चार्ज में फुल करके आई हुई हूँ और आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है.
एक्टिविटी का मजा ही नहीं आएगा अगर मेरी आवाज में ही डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है, नहीं है क्लियर मेरी आवाज? अब क्लियर है। चलें, अल्लाह करे अब क्लियर ही रहे। ओके जी, अच्छा जी, ये 3 स्टूडेंट्स हमारे आ चुके हैं जी कैमरा पे। आई नीड 3 मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कैमरे पे ही ज्वाइन करना है। कोई से 3 स्टूडेंट्स? ओके फातिमा, ऑलराइट जी। फातिमा के बाद कोई और स्टूडेंट? 2 और स्टूडेंट्स जी। आयशा आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। Anyone else? One more student I need. इतनी बड़ी क्लास में जी जी, we have Fatma over here, we have Asad, Sultan, okay, Meera and okay Aisha. Please, I require one more student, otherwise okay जी। अच्छा जी, मेरी इंस्ट्रक्शन सुन जी। बुशरा प्लीज, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ना इंस्ट्रक्शंस देने लगी हूँ। असद, मीरा और सुल्तान, आप लोगों की होगी एक ही एक्टिविटी है, वो पूरी जो है ना क्लास को अब नहीं कहना चाहिए, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके लिए। ठीक है, असद, सुल्तान और मीरा, आपकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको मैंने अभी एक स्टोरी भेजनी है, वो ये, और वो आपने जस्ट विद इन 1 मिनट तो पढ़ना है। देन आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं कि कौन उसको कितनी जल्दी पढ़ पाता है और कितने ज्यादा आंसर्स कौन दे पाता है। अच्छा, अब इसको मैं रिलेट करूंगी इस चीज, जब आप ना तो आप कहते हैं कि चीजें मिस हो गई, टीचर वो, ठीक है। Is my internet still giving some kind of distortion? मैम लैग कर गई थी दरमियान में आवाज। ओके, अच्छा जी, इसको मैं रिलेट करूंगी कि जब आप टीचर का लेक्चर नोट कर रहे होते हैं ना, आप सब स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। आई एम रियली सॉरी बेटा फॉर द प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, अच्छा जी, अब उसमें क्या होता है, यू मिस आउट सम पॉइंट्स बिकॉज द टीचर इज टॉकिंग वेरी स्पीडीली और इन अ वेरी फास्ट मैनर। तो वहां पर आप क्या कर जाते हो, यू मिस सम पॉइंट्स ऑल्दो यू आर एक्टिवली लिसनिंग। अब आपने ये काम जो है वो पढ़ने के साथ करना है। अभी जो आपको स्टोरी भेजी जाएगी तीनों को इकट्ठे, ठीक है। 1 मिनट होगा आपके पास, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करूंगी। जैसे आपने rest of the you are again, you're not on camera, I cannot see you. आपसे जी आयशा और yes ma'am, it's here, but Aisha participating and I asked your permission before, क्लियर आ रही है। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, बता दे मेरी अगर आवाज नहीं आ रही तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया एक्टिव लिसनिंग वाली ही वर्कशॉप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज लैग कर रही है ध्यान में। यस, अच्छा, आई थिंक देन वी शुड, आई कैन स्किप दिस एक्टिविटी बिकॉज़ फिर ना आप लोगों को पता आएगा ना इस एक्टिविटी। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको ना मैं किसी और एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देती हूँ, बिकॉज अगर आप लोगों को ना आंसर्स प्रॉपर नहीं दोगे, आई एम रियली सॉरी अरीज, आई एम रियली सॉरी। मैं बताता हूँ मैम, बात सुनिएगा। आप 1 मिनट के लिए कैम ऑफ करके जब माइक ऑन करेगी ना, उसकी वजह से जब कैम ऑन होता है ना तो उसकी वजह से ज्यादा इंटरनेट लगता, तो कैम ऑफ करके इंस्ट्रक्शंस दे दें। चलिए जी, ठीक है, ओके, मैंने आपके इंस्ट्रक्शन पे अमल कर लिया। अब जरा मुझे बताइए। यस मैम, क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? यस। चलें, आज मैं ऑफ कैमरा रहूं, कैमरा जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नहीं ऑन कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस के बाद। चलिए ठीक है। नहीं, असल में ना मैं चाहती थी कि ना ये वाली थोड़ा सा एक्सप्रेशन से रिलेटेड थी। चलिए मैं एक्सप्रेशन वाला पार्ट जो है ना उसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, बाकी मैं कर देती हूँ।
पहले आप लोग मुझे नजर आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आप सबको नजर आना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छी बात है, कैमरे पे आया करें ज्यादा ज्यादा, ठीक है। लोग आपको माशाल्लाह बोलते रहेंगे आपके चेहरों पर, ठीक है। ओके जी, चलें। अच्छा जी, ऐसा है कि आप लोग को क्लियर है इंस्ट्रक्शन, असद, मीरा और सुल्तान। अच्छा, आपकी वीडियो के साथ साथ आपका जो माइक है वो भी अनम्यूट रहना चाहिए, ठीक है, म्यूट नहीं होना चाहिए, ताकि अगर आपकी तरफ कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी तो वो मैं प्रॉपर्ली सुन पाऊँ, ठीक है। ओके, यही वाली एक्टिविटी मैं बहुत तेजी के साथ करूंगी आयशा आपके साथ, ठीक है। आयशा जी, आर यू विलिंग? ठीक है, ओके। आयशा आपके साथ मैं क्या करूंगी, आपको मैं जो बोल रही हूँ ना सिर्फ एक दफा बोलूंगी और बहुत तेज तेज बोलूंगी, ठीक है, और वो उससे ज्यादा तेज होगा जितने मेरे रिसर्च के लेक्चर्स होते थे, ठीक है आयशा। तो आपने गौर से सुनना है, गौर से सुनना है, और फिर मैंने उस पर आपसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ठीक है मैम। बुशरा का काम ये है कि बुशरा आपसे, इनसे जो मैं क्वेश्चन आयशा से कर रही हूँ ना वो आपने जस्ट लिखने हैं, ठीक है। ओके मैम। और फातिमा आपने आंसर्स लिखने हैं आयशा के, क्लियर है? ठीक है, आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? बुशरा मैंने क्या कहा है, आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है, आपने क्या करना है? जो आपने आयशा से क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने लिखने हैं। ठीक, स्टोरी नहीं लिखनी जो मैं सुनाऊंगी, आपने जस्ट क्वेश्चंस लिखने हैं जो मैं जी। हाँ जी, स्टोरी सिर्फ इन्होंने सुननी है, ठीक है। ओके, और फातिमा आपने आंसर्स लिखने हैं इनके। डू यू हैव द पेन एंड पेपर? बाय द वे आई मस्ट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोरहैंड। यस मैम। ठीक है, पेपर पेन नहीं है तो ले आइए। बुशरा कर लेंगी? यस मैम, आई हैव पेपर एंड पेन। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, ठीक है। अब मैं अच्छा, आपके पास भी आयशा एक ही बार मैं बोलूंगी, ठीक है, क्वेश्चन भी मैं एक ही बार बोलूंगी, और मीरा, सुल्तान और असद, यस मैम, आप लोगों को अगर आंसर आता होगा तो आपने अपना नाम बोलना है, ठीक है, ताकि मैं कहूँ कि ठीक है अब मीरा आंसर करें, असद आंसर करें, ठीक है। अपना आपने नाम बोलना है और उसके बाद जो है आपने आंसर करना है जो भी मैं क्वेश्चन मैम, ठीक है। यहाँ पे जाहिर है बजर तो है नहीं मेरे पास जी। मैम जो मीरा और सुल्तान वगैरह आंसर करेंगे मैं वो भी लिखूंगी या सिर्फ नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा किया पूछ लिया। आयशा के जस्ट आपने आंसर्स को नोट करना है। बुशरा आपने भी जस्ट वो क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँगी आयशा से, ठीक है। ओके। अच्छा, मीरा, सुल्तान और असद को यस मैम, ये स्टोरी इकट्ठे जा रही है 1 मिनट के लिए। आयशा आपसे जो भी बातचीत होगी, मेरी जो भी स्टोरी होगी, दैट इज गोइंग टू बी अगेन ऑफ 1 मिनट, ठीक है जी। ठीक है। ओके, असद आर यू रेडी? यस मैम। ओके, मीरा आर यू रेडी? Mira, have you received? Asad, please let me know if you have received. Received. Sultan, आपको हम व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं जी जी व्हाट्सएप पे मैं आपको ईमेल नहीं कर रही। ठीक है, आ गई है, आ गई है। चलिए जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, आयशा आर यू रेडी? यस मैम। ओके, सुने। सलीम और कामरान दो दोस्त थे। सलीम के फादर का नाम नुमान है, कामरान के वालिद साहब का नाम मिर्जा अली है। सलीम की वालदा का नाम फातिमा है, कामरान की वालदा का नाम अलीना है। सलीम का फेवरेट कलर है ग्रीन। आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। आपके फादर का नाम क्या है? आजम भट्ट। कामरान के फादर का नाम क्या था? नबील। आपके रूम की छत का कलर क्या है? ग्रे। यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं? I don't know. ओके, मरकरी के क्या स्पेलिंग है? ठीक है, एक मिनट मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। आज डेट क्या है? 7th 8th। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं आपकी? 13th। मोबाइल कौन सा है आपका? वीवो। दुपट्टा इस वक्त कौन से कलर का पहना हुआ है? दुपट्टा कौन से कलर का पहना हुआ है? White मैम, I said white। ठीक है, और यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं? नहीं आता? अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल, ठीक है जी। और मरकरी की स्पेलिंग रिपीट करेंगी आप? MERCURY।
वेरी गुड जी। सुल्तान, असद एंड मीरा, बेटा टाइम्स अप, बच्चे टाइम्स अप। ओके ओके जी। कहानी पढ़ ली आपने? मैम कहानी थी 3 पेजेस की, मेरा भी आधा हुआ था। सेम। अच्छा जी, ये मेरा पहला क्वेश्चन था और मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दी थी? अपना नाम बोलना है। समझ आइए? ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, यस मैम। सुल्तान, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता था कि आपने कहानी पढ़ ली है या नहीं? माय नेम इज सुल्तान आबिद। नहीं आपको अच्छा स्टार्ट नाम से करना था ना। शायद मेरा अच्छा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं ठीक है, रिपीट ठीक करती है। हूँ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता था कि आपने कहानी पढ़ ली है या नहीं पढ़ी है? किस? नहीं, आपने कहानी पढ़ ली हाफ। कल? नहीं अच्छा, नहीं। हाफ पढ़। सो दिस इज द हाँ आंसर। ठीक है, चल ठीक है, ओके। ठीक है। मीरा, आप बताइए, अभी तक आप पढ़ तो नहीं रही है ना? नो मैम, मैंने छोड़ दिया। पढ़ ली है, पूरी पढ़ ली है? नहीं, मैं एक लाइन से आगे ही नहीं गई। एक लाइन मैम से मैंने आगे नहीं? फर्स्ट पेज से भी, यानी कि मैम फर्स्ट क्योंकि पेज मैंने का हाफ हेडफोन्स था लगाए मेरा। हुए थे, हेडफोन्स लगाए हुए थे और आपकी आवाज इतनी ज्यादा आ रही थी कि मैं यस। बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही कि मैं एक लाइन से आगे ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, चलें जी। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू रियलाइज कि जब आप शोर में बैठ के जूम क्लासेस लेते हैं ना, तो आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। yes. ठीक है। अच्छा जी, सेकेंडली चलें जी, मेन कैरेक्टर का नाम क्या था? असद मैम, कैन आई आंसर? जी जी मैम, मतलब स्पेलिंग याद है मुझे, MALLARD। कामरान के फालिद का नाम क्या है? मैम इमरान होगा। किसी को आता है? कामरान के वालिद का नाम? मैम नबील अच्छा, था। आयशा? नहीं, आपसे मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं किया। आपसे मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया। आपसे मैं ये कहने लगी हूँ कि मैंने आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था? नहीं यार, आपने मेरे से थर्ड क्वेश्चन मैम एक गेस यही था कि कामरान के फादर का नाम क्या है। ठीक है, वेरी गुड। और सेवंथ क्वेश्चन क्या था मेरा? नहीं नहीं यार, ओके ओके जी। बुशरा, बुशरा आप बताएंगी? यस मैम। जी। सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं जो आपने नहीं बोले? नहीं नहीं नहीं, मुझे इनका सेवंथ क्वेश्चन बताएं जी। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? ठीक है, ओके। फातिमा आप बताएं, इनका आंसर क्या था? 7th सितंबर। हाँ जी, सेवंथ क्वेश्चन का 13 सितंबर। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या था? ग्रे। ग्रे, ऑल राइट। अच्छा जी, अब थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। बेसिकली ये आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं था, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को जो है ये आंसर, जाहिर है आयशा को जो है वो क्यों नहीं आए। जब मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया है, कामरान के वालिद साहब का नाम जो है वो याद कराना तो मेरा मकसद नहीं था ना। क्या मकसद था इस एक्टिविटी का? व्हाट हैव यू लर्न? बेसिकली मैं चाहूंगी कि बाकियों में से अगर कोई बताए, इफ यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू दिस लेक्चर, आप में से कोई बताएगा व्हाट हैव यू लर्न? देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। क्या हुआ है सबके साथ? जिसको जो टास्क दिया गया उससे प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, क्यों? कामरान, सॉरी, सुल्तान, असद और मीरा को जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ठीक है। या जो भी मैं क्वेश्चन इस हवाले से करूंगी, जो मैंने स्टोरी आयशा से जो है आयशा को सुनाई है, उसका कोई भी आंसर नहीं कर सकते आप लोग। रीजन क्या है? आपको आइडिया हुआ है क्या बातचीत हो रही थी मेरी आयशा के साथ? कुछ आप बता सकते हैं कि पूरी बात क्या हुई है मेरी इनके साथ? कोई एक क्वेश्चन बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। रीजन क्या थी? बिकॉज यू वर हाईली इनग्रॉस्ड समवेयर एल्स। आपको कोई और टास्क दिया गया था। क्लियर है ये पॉइंट? yes. आप लोग जब कहीं किसी और चीज में इस हद तक फोकस दे देते हैं तो आप एक्टिव लिसनर जो है उस एनवायरनमेंट में नहीं हो पाते। जैसे मीरा ने भी कहा है, शी वाज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय माय वॉइस, ठीक है। दूसरी तरफ जो है क्या हुआ है,
जो लोग जस्ट एक ही टास्क कर रहे थे कि दे वर राइटिंग आइदर आंसर्स और क्वेश्चंस, बुशरा और फातिमा का जो टास्क था वहां क्या हुआ है बेसिकली, उधर क्या हुआ है, वो बेसिकली सिर्फ सुन नहीं रहे थे, राइट जी, एक्चुअली दे वर जस्ट लिसनिंग। हाँ एग्जैक्टली, और वो भी उस स्पेसिफिक टास्क को। इसीलिए अगर मैं उनसे पूछूं, एक्चुअली अगर मैं उनसे पूछूं कि क्वेश्चन क्या था, तो वो उसी सीक्वेंस में भी मुझे बता सकते हैं कि आपने पहला क्वेश्चन ये किया, सेकंड ये था, फोर्थ ये था, फिफ्थ ये था, सेवंथ ये था, थर्ड ये था, एट्थ ये था, और इसी तरह से आंसर्स भी सीक्वेंस में मुझे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर आपका फोकस नहीं होगा या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, वहां पर आप कोई भी टास्क करने की कोशिश करेंगे, आपसे वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आइदर यू आर गोइंग टू लिसन टू समवन्स पॉइंट, or you are going to distract your attention towards somewhere else. अच्छा जी, unable to handle the current situation with active listening and not mentally present. ठीक है जी, this is also one of a very good points. अच्छा, again I think यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो गया होगा कि जब आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रैक्शंस होती हैं या जब आप बहुत ज्यादा फोकस होते हैं किसी एक काम पर, तो आपकी एक्टिव लिसनिंग जो है वो होते हुए भी नहीं हो पाती। अब असद को, सुल्तान को, मीरा को मेरी आवाज आ रही थी, लेकिन मैंने जो भी बातचीत की, मेरी जो भी कन्वर्सेशन की, उनकी उसको कुछ समझ नहीं आई। और क्या थी एक्टिव लिसनिंग? यू हैव टू ग्रैस्प द एक्चुअल मीनिंग। आपके इर्द गिर्द इतनी डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया जो है वो हर वक्त आपके हाथ में है कि आपको मम्मी की आवाज सुनाई देते हुए भी ना उनका मीनिंग समझ नहीं आता, इसीलिए आपको आवाज नहीं सुनाई देती, और ये स्पाउसेस में बहुत ज्यादा होता है। ओके जी, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी कि लिसनर्स जो हैं उनकी एक और क्वालिटी क्या होनी चाहिए। वन ऑफ द क्वालिटीज दैट अ गुड लिसनर शुड हैव इज, बेटा पीछे पिछली स्लाइड पे, ठीक है, कि यू डू नॉट हैव टू जंप इन विद क्वेश्चंस और कमेंट्स एवरी टाइम देयर इज अ फ्यू सेकंड ऑफ साइलेंस। इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाज दफा आपके पास जो है ना टाइम कम होता है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू सिचुएशन में ये बहुत होता है कि दे टेक एडवांटेज ऑफ योर साइलेंस, ठीक है, कि जैसे ही जो है वो साइलेंस आई, दे पुट अप द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज दे हैव टू फाइंड अप सो मेनी इंटरव्यूज विद इन अ डे। लेकिन होता क्या है कि जब आप नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, तो आप अगले शख्स को बाकायदा साइलेंस का टाइम दीजिए, ठीक है, या जब वो साइलेंस वाला टाइम ले रहा है तो उसमें आप इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि the person is going to, specifically when the person is going to be a client tomorrow, so that person is going to explore his or her thoughts and feelings, ठीक है, तो उन्हें adequate time दें। However, अगर एक awkward silence हो जाए तो उसे आपने क्या करना होता है, उसकी possibility को आपने reduce करना होता है। एक awkward silence जब आती है ना, तो अगला शख्स बहुत embarrassed फील कर रहा होता है, embarrassment से ज्यादा वो uncomfortable फील कर रहा होता है, ठीक है, कि जी शायद इसको अगेन मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही है, तो वो वहीं पर ही जो है अपनी बात को रोक देता है। तो आपने एक्टिव लिसनर बनने के साथ साथ आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि हमने साइलेंस का पीरियड देना भी है और कितना जो है वो टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? थैंक यू Samaira a lot for helping me out in displaying these slides. जी, What causes hindrance in active listening? I think आप लोगों को distortions, distractions का मतलब पता ही है. I think we should move on. We are already running short of time, and I want to cover it within the given time limit. जी बेटा, I hope that that's clear. Hindrance क्या होती है active listening में? Distractions हैं. Distractions का मतलब क्या होता है? Noise हो गई. आपका social media आजकल के दौर का बहुत बड़ा distractor है. ठीक है, जहां पर आप इस हद तक जो है वो गुम हो चुके होते हैं कि आपको बाहर की दुनिया, जो आपके इर्द गिर्द की दुनिया है, ना आपको वो दिखाई दे रही है ना आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। सो ट्राई टू बी एक्टिव लिसनर वाया कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि अगला शख्स आपकी बात सुन नहीं रहा होता, और आप देखें कि ये जो एंगर का इशू आ जाता है, स्ट्रेस का इशू आ जाता है, क्यों आता है? लोग कहते हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं है, और घर वाले कहते हैं हम सुनते तो हैं, जब भी ये बोलता रहता है मैं इसकी सुन रहा हूँ। क्यों वो कहता है कि मेरी बात सुनी नहीं जाती है? बिकॉज दैट पर्सन नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। देखिए, मेरी आवाजें आपको आ रही थी, इन तीनों लिसनर्स को, बाकी सबको भी आ रही थी, लेकिन वो उन्होंने मीनिंग नहीं ग्रैस्प किया कि मेरी कन्वर्सेशन क्या होती है, बिकॉज दे वर नॉट पेइंग अटेंशन, क्योंकि मैंने इन्हें कोई और काम दिया हुआ था, ठीक है। होप इट्स क्लियर। बेटा नेक्स्ट पे जाइएगा।
ओके जी, एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी डन। ओके, अच्छा जी, वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस जो हैं वो भी आपने शो करने होते हैं, विच ऑल्दो वी हैव मोस्ट ऑफ देम हैव बीन कवर्ड, लेकिन हम इनको भी फर्दर जो है सम अप करने के लिए कवर कर लेते हैं। जी बेटा आगे चलिए, बहुत सिंपल है, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया इस टॉपिक को। जी बेटा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइंस है एक्टिव लिसनिंग के, जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, द अदर पर्सन इज गोइंग टू गेट टू नो कि आप उनकी बात कितनी सुन रहे हैं और कितनी जो है वो तवज्जो से सुन रहे हैं। स्माइल है, आई कॉन्टैक्ट है, पोस्चर है। अच्छा, पोस्चर को जो है हमने अभी तक इतना ज़्यादा जो है वो वास्टली नहीं कवर किया, इसका मैं बता देती हूँ। देखिए आपका पोस्चर जो है ना वो टुवर्ड्स दैट पर्सन फुली होना चाहिए। आप ऐसे ना सुन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेल फोन, ठीक है, और मैं बात जो है वो ऐसे सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ 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 सुन रही हूँ, हाँ ठीक है, तुमने अभी उसका बताया ना, सही है सही है। अब आप बताएं कि अगले शख्स के पास क्या मैसेज जा रहा है, कि इससे बेहतर है मैं ये बात सामने वाली दीवार को सुना दूँ, क्योंकि आप भी उसके सामने एक दीवार बन के खड़े हुए ना, आपके रिलेशन के दरमियान एक दीवार आ गई है, आपने खुद क्रिएट किया अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने पोस्चर से। पोस्चर आपका ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से किसी और स्टूडेंट ने मुझसे बात की है या अपना कोई क्वेश्चन रेज अप किया, तो मैं फौरन उनकी तरफ मुतवज्जो हूँ पूरे तरीके से, ठीक है। एटलीस्ट माई फेस शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, ताकि उन्हें आइडिया हो कि ओके शी इज नाउ अटेंटिव और ही इज नाउ अटेंटिव टूवर्ड्स मी, ठीक है। इसी तरीके से आई कॉन्टेक्ट का आपको आइडिया, स्माइल का भी। जी नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट को कवर करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव ओनली last minute going on, but I'm going to take only 10 more minutes. Other person feels that they are not giving importance. Exactly. और यही बात मैं आपको बताऊं, इतनी सी बात रिलेशनशिप्स में बहुत बड़े गैप्स क्रिएट कर देती है, बहुत बड़ी जो है ना खलीज हायल कर देती है, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। रिलेशन इतनी बातों से जो है वो खराब होने लग जाते हैं कि जी इसको पास तो टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने के लिए। एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द स्किल्स दैट वी नीड टू लर्न, बट इट रिक्वायर्स पेशेंस। और रीजन उसकी ये है कि हमें आदत नहीं डाली गई किसी की और की बात को इंपॉर्टेंस देने की। We will meet inshallah for the next 10 minutes in the other session. ठीक है, मैं next 10 sessions लूंगी और इंशाल्लाह इसको wind up करूंगी। Thank you for joining. Please join the next session.